جی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قطعاً اس کام کے لیے یہ نہیں ہمیں دیے، ٹھیک ہے بلکہ یہ تو ہمیں اس سے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، ٹھیک ہے یہ تمہارے خادم ہیں، خادم ان سے خدمت لو۔ صحیح تو جو قومیں جو تھیں وہ ان کو خدا سمجھنے لگ گئے، وہ ان کی خدمت سے محروم ہو گئے پھر۔ ٹھیک تو یہ اصل پوائنٹ ہے ان کا بتانے کا مقصد تھا جی کہ یہ آپ کے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخر لکم الشمس والقمر، کہ تمہارے لیے یہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں یہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ جی تو اسی طرح دریا سمندر بھی تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ جی تو اسی سلسلے میں بعض لوگ پھر وہ جو پتھروں کی پوجا، دریاؤں کی، سمندروں کی اور پہاڑوں کی پوجا، ہاں آگ کی پوجا کرنے لگ گئے۔ بالکل تو اسی طرح اس حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے معارف اور حقائق سمجھائے اور انہوں نے پھر دنیا کے سامنے ان حقائق اور معارف کو پیش کیا، جی تو انہوں نے ایک حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے جی وہ کہنے لگے کہ میں نے کسی سفر پہ جانا تھا، اچھا تو میرے پاس کافی سارا سامان تھا۔ اچھا تو اس زمانے میں تو سفر پیدل زیادہ ہوتے تھے، اور پیدل انسان سفر ہوتا ہے جب تو اس میں انسان کو تھکان زیادہ ہوتی ہے، بالکل گرمی زیادہ لگتی ہے، بالکل اور مٹی سے اور انسان اس سے زیادہ دھوپ سے زیادہ تنگ پڑتا ہے۔ ہاں تو اسی طرح ہوا کہ وہ پیدل سفر میں صحابی جا رہا تھا، اچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کسی دوسری جگہ کام پہ جانا تھا، تو اس کے پاس اسباب تھے، سامان تھا کچھ، تو اس نے سامان اپنا پاس رکھا، اور وہ تو اس کے پاس جو تھا وہ پتھر کا بنا ہوا تھا یا لوہے کا بنا ہوا تھا۔ اچھا تو اس نے کہا کہ اچھا بھائی خدا صاحب، میں ذرا تھوڑا سا کام اپنا مکمل کر رہا ہوں، ہاں تو آپ ذرا میرے اسباب کا خیال رکھیں خیال رکھنا کہ کوئی چوری نہ کر لے۔ ہاں تو وہ خیر اپنا کام کر کے تو واپس آئے، تو وہاں ان کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگ گیا۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جس کی وہ پوجا کرتے تھے خدا صاحب، ہاں اس کے اوپر ایک گیدڑ جو ہے وہ اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ کر تو وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اچھا تو وہ ابھی کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں سخت پریشان اور شرمندہ ہوا کہ اچھا یہ وہ خدا صاحب تھے، چنگا میرا خدا ہے چنگا میرا خدا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس نے میرے سامان کی کیا حفاظت کرنی۔ کیا بات ہے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہی خیال آیا کہ دراصل یہ بت جو ہے، ہاں خواہ وہ پتھر کا ہو، خواہ وہ سورج کا ہو، آگ کا ہو یا سمندر کا ہو، وہ بت ہی ہے، وہ مجھے نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا نہ سکتا ہے۔ نقصان تو اس لیے ہمیں ایسی ہستی کی پوجا کرنی چاہیے جو دراصل اس دنیا کی مالک ہے، جو دراصل اس دنیا کی خالق ہے، بالکل جو اس سورج کی خالق ہے، جو اس سمندر کی خالق ہے، ہاں جو ان ہواؤں کی اور چاند کی اور سورج اور ستاروں کی خالق ہے، ہمیں ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ تو یہ سبق ملتا ہے ہمیں اس سورج اور چاند اور ستاروں کے اور پہاڑوں کے ذکر سے۔ ذکر تو اسی طرح ایک دوسرے صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا، اچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ سفر پر گیا تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو سامان پہلے ہی کافی ہے، ہاں تو مزید سامان میں نہیں اٹھا سکتا، تو یہ بت کا کیا کروں؟ اچھا تو اس کو خیال آیا کہ چلو آٹے کا بت بنا لیتے۔ اچھا تو وہ کہتا ہے کہ آٹے کا بت بنا کے تو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھ دیا۔ اچھا تو جب 2 4 5 میل چل لیا سفر میں، تو تھک گیا بیچارہ، دھوپ بھی زیادہ تھی، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تو وہ سستانے لگ گیا۔ تو سستا تو لیا، ایک درخت کے نیچے انہوں نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا، لیکن اس کو پھر بھوک بھی لگ گئی۔ بھوک لگ تو پاس کوئی آبادی تھا نہیں، جنگل میں وہ بیچارہ سفر کر رہا تھا۔ اچھا تو اس نے کہا کہ اب تو کوئی کھانے کے لیے چیز ہی نہیں ہے، تو آج تو پھر یہ آٹے کے جو خدا صاحب ہے نا، اپنے خدا نے کھا لو اس کو کٹ کے اس کو، تو پانی کہیں تھا وہاں قریبی، تو پانی ڈالا اور آٹا گوندھ کے اس کو آٹا بنا کے وہ کھا۔
अच्छा तो वो कहने लगा कि ओहो ये हमारे कैसे खुदा हैं हाँ। जिनको हम कूट काट के तो खा भी सकते हैं। तो वो कहने लगा कि वाकई ही ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये सही तबलीग करते हैं, ये सही बात कहते हैं। ये सही बात कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे खुदा नहीं बन सकते, हाँ खुदा अलहदा है, ये तो खुद आपके खादम है, आपके ये आपकी खिदमत के लिए, लोहा भी हाँ। जो है आपकी खिदमत के लिए है, हाँ। पहाड़ भी आपकी खिदमत के लिए है, हाँ। सूरज भी आपकी खिदमत के लिए है, हवाएं भी जो चलती हैं ये भी आपकी ये खादम भी है। आपकी। तो दरअसल इंसान को ये सबक दिया गया है कि सबसे कीमती इस कायनात की जो वजूद है हाँ। वो अल्लाह ताला और उसके रसूल हैं। उनको अल्लाह की बात मानो, हाँ। अल्लाह की इबादत करो और रसूल का हुक्म मानो, बात रसूल की इताअत करो और उसके खुलफा की इताअत करो। ठीक। तो अगर तुम इसके दुनिया के और इंसानों के खालक की पूजा करोगे, हाँ। खालक की तुम बात मानोगे, खालक के अहकामात मानोगे, हाँ। नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, ज़कात दोगे, कुरान पढ़ोगे, तो उसके अहकामात पर चलोगे तो तुम कामयाबी और कामरानी तुम्हारे कदम चूमेंगे और तुम्हारी फिर सारी दुनिया तुम्हारी खातम है। ये रबी साहब हमारे जो पाकिस्तान में कुछ लोग डायरेक्ट बुत तो नहीं बनाते, लेकिन वो कब्रों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं और वहाँ मुरादें मांगते हैं जी। और पीरों को सिजदे करते हैं। तो ये भी बुत परस्ती है। ये भी एक बुत परस्ती है। एक तो बुत परस्ती है और दूसरा उस बुत परस्ती का डबल गुनाह ये है कि जानते हैं और ज़ुबान से इकरार करते हैं कि हम खुदा को मानते हैं। हाँ। तो खुदा को जब मानते हो तो फिर उस मुर्दे के पास जाके तुमने क्या लेना है, फिर जिंदा खुदा को ही मानो। मौलवियों का खुदा को ये पूछो। हाल है। पुराने ज़माने में मैंने देखा मौलवी नमाज पढ़ा के ईद नसरत अल मुस्तकीम कह के हाँ। यानी खुदा ताला कोलों सब कुछ मंग के फिर वो नमाज तो बाद छापा लैके लोगों के घरां च जाके रोटियां मंगते। रोटियां मांगते। तो ते- इसका मतलब है कि अल्लाह पर तवक्कुल कोई अल्लाह पर तवक्कुल कोई नहीं, यानी ये मानते हैं कि तू ही मैं सारा सब कुछ देना। हाँ, लेकिन अमली तौर पे हाँ। उसके उल्ट करते हैं। हाँ, तो इससे भी आपको आपके एक छोटा सा वाक़या हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा वहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के घर में थे, तो कोई वहाँ पे इलाज के लिए लोग आए, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने उनको एक नुस्खा बताया। तो वो हज़ूर ने फरमाया कि इस वक्त तो नुस्खा बना हुआ तो नहीं है, तो ये बटाला या अमृतसर जाना पड़ेगा। तो हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बटाला चले गए। तो वहाँ मतलब इसी तरह बेसरो सामानी के अल्लाह पर तवक्कल करके तो जो भागते भागते जूतियाँ पहन रहे हैं और सर पर कपड़ा पर लेट रहे हैं और चाहे भाग गए। तो वहाँ नहर करीब है कादियान के। हाँ। तो नहर के साथ एक टांगा खड़ा था। अच्छा। तो टांगे वाले ने कहा कि भाई हकीम साहब बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, पैदल जा रहे और हैं, पैदल जा रहे हैं, भाग रहे हैं बल्कि। हाँ। इसका मतलब कोई इमरजेंसी है उनको। जल्दी है। तो वो भाग के गया टांगे वाला, तो कहता है भाई मौलवी साहब हम भी आपके खादम ही इधर खड़े हैं, तो आए आप टांगे पर बैठे तो मैं आपको बिठाले ले जाता हूँ। तो वो कहने लगा, मौलवी साहब ने फरमाया कि भाई ये तो मुझे भी पता है कि तुम उधर खड़े थे और तुम इसी काम के लिए हो, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ। तो मेरे पास मैं तो अल्लाह तवक्कल चल पड़ा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा तुसी टांगे ते बैठो तो मैं तो बटाले लेके जाना। अच्छा। अब देखें अल्लाह ताला पर तवक्कल करने वालों का हाँ। किस तरह खुदा ताला फिर हिफाजत और उनको उनके लिए गायब से सामान कैसे करते हैं। सामान पैसे का। तो जो ही हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब को टांगे वाला लेके बटाला में पहुंचा, तो अभी वो मौलवी साहब चंद कदम ही गए थे। हाँ। तो वो टांगे वाला जो है वो टांगे को और घोड़े को उधर ही छोड़ा। तो वहाँ एक आदमी आ गया, तो कहने लगा मैं भाई कादियान जाना है, तो टांगे वाले मैं हकीम नूरुद्दीन साहब को दवाई लेने जाना। तो वो कहने लगा कि वो तो इधर ही आए हुए हैं। हाँ। कहते किथे ने, कहते वो अभी इधर गली में गए हैं। हाँ। कहते चलिए यार ज़रा। वो खैर भाग के गया, तो उन्होंने पकड़ लिया, मौलवी साहब को जा मिले। तो मौलवी साहब को सारा किस्सा सुनाया। तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा ये नुस्खा है और तुम इधर से ख़रीद लो और जाओ, इससे तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो वो बेचारा उसके पास
30-35 रुपए उस ज़माने में बड़ी चीज़ थी। हाँ। तो उसके जेब में 30-35 थे, तो निकाल के कहते मौलवी साहब मेरा तो इन्ना किराया ही लग जाना सी हाँ। ते तुसी मिल गए हो, अल्लाह ताला तुहानू जज़ाए खैर दे। तो आपने ये नुस्खा मुझे बता दिया है। तो मेरे पास आज तो बहरहाल मेरे पास 30-35 है। अच्छा। तो मैं जब फिर कभी मिलूँगा तो आपकी खिदमत करूँगा। तो देखिए अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनको सिर्फ टांगे का किराया दिया, हाँ। बल्कि जो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उनको नुस्खा वहाँ से ख़रीद कर लाने का था, वो पैसे भी उनको अता कर दिए उसके पैसे भी मिले। अल्लाह पर तवक्कल करने के। जो आप कह रहे हैं ना कि मौलवी अल्लाह पर तवक्कल नहीं करते, हाँ। वो वहाँ नमाज भी पढ़ाते हैं सारा कुछ, लेकिन रोटी लोगों के घरों से जाके मांगते घरों से हैं। जाके मांग तो वो फिर हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो 35 रुपए से उन्होंने सारा नुस्खा भी खरीदा। अच्छा। 5 रुपए टांगे वाले को भी दिए। उस वक्त तो टांगे वाले को 1 रुपया मिलता था। 1 रुपया तो जब उसको 5 रुपए मिले तो वो बहुत खुश हो गया। भी मैं तो बड़ा अमीर हो गया हूँ। हाँ। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने सारा सामान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को वो नुस्खे की जो दवाइयाँ थी वो सारी सुपुर्द की और सलाम दुआ करके तो वो वापस अपने घर में चले गए। तो जब घर में दाखिल हुए तो बीवी को कहा, वज़ू किया, सारा कुछ किया, तो बीवी को कहा कि कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत कोई होगा। तो बीवी कहने लगी अच्छा जिन्होंने तुहानू अमृतसर या बटाले घलिया सी उन्होंने रोटी का नहीं पूछा। तो आप ये बात सुन के खामोश हो गए। अच्छा। तो आपने वज़ू किया, वहाँ मसल्ले पर अभी खड़े ही थे, तो बाहर से दरवाज़ा खटका। तो कहने लगे यार मैं तो नमाज़ पढ़नी थी, तो देखो बाहर कौन है। हाँ। तो बाहर जाके देखा तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बाहर दरवाजे पर खड़े हैं और आपने ही वो कुंडा खड़काया और आपके हाथ में उबले हुए चावल और उसमें दूध डाला हुआ और चीनी डाली हुई, अच्छा। वो पकड़ा हुआ है। वाह। तो कहते हैं कि मुझे बाद में ख्याल आया जब आप आ गए कि वो नूरुद्दीन ने तो अभी रोटी खानी थी। रोटी का तो ये देखे तवक्कल की बात है हाँ। कि अल्लाह ताला ने खुदा के मसीह को बता दिया बिल्कुल कि नूरुद्दीन ने अभी खाना नहीं खाया, हाँ, वो तो भूखा उसके खाने का आपने इंतजाम करना इंतजाम है। कर। तो वो फिर हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब को हाँ। वो खुद खाना जाके दिया और आपने पेट भर के खाया हाँ। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का शुक्रिया भी अदा किया। तो नाज़रीन ये है आपने- तवक्कल अल्लाह की बात, ये अल्लाह पर तवक्कल करने जो के खुदा को पूछते हैं। आपने जो 2 वाक़यात मोहतरम रफ़ी साहब ने सुनाए हैं वो कैसे ही शानदार हैं और ज़बरदस्त हैं कि जो खुदा को पूछता है खुदा उसका बंदोबस्त कर देता है, उसका वाली हो जाता है, उसका वारिस हो जाता है। लेकिन जो खुदा को छोड़कर किसी और की पूजा करते हैं उनसे फिर खुदा ताला खफा होता है। तो और खुदा अल्लाह ताला उनको हमें कोई फ़ायदा नहीं देता। सिरात मुस्तकीम पर चलने